आपको फाइनेंस जैसे टॉपिक से डर लगता है, then this conversation is definitely for you because we have Mr. Archit, the founder of Finance Wala. Just type on Google top 5, top 10 books on personal finance and read the first 5 books that come up. So you can't study stocks unless you know how to read a financial statement. What's that one financial advice जो आप लोगों को देना चाहोगे? 100 rupees कमाने में अगर आप 10 घंटे स्पेंड कर रहे हो तो उसको बेटर मैनेज करने में 10 मिनट 20 मिनट स्पेंड करना, how is that a bad decision? If you manage that pocket money well, you will know how to manage your business का profits well. Being a creator एक और बहुत बड़ा problem ये है कि you have to be interesting in the first 5 seconds and you can't be boring at all at any given point. If you are, your channel won't grow. लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी problem है. Trust easily build हो रहा है and फिर भी मतलब following आ रही है. Hi, this is Ritika and you are here with me on the Kanpur Stories podcast. और अगर आपको फाइनेंस जैसे टॉपिक से डर लगता है, then this conversation is definitely for you because we have Mr. Archit, the founder of Finance Wala. तो जानते हैं उनसे कुछ financial advice and insights जो आपके बड़े काम के हैं. Hi Archit, welcome to the Kanpur Stories. Thank you for having me. So basically आप क्या करते हो? थोड़ा अपने बारे में बताओ, थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए आप. So we are basically we have a content creation वाला page, Finance Wala. उस पे we create content around startups, entrepreneurship. We share interesting entrepreneurs का stories on that platform, and we also share some personal finance advice which we think is useful and मतलब relevant for everyone that follows us. What's the name of the page? It's called financewala.in. So अच्छा, फाइनेंस इज अ सेक्टर जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है बिकॉज आई गेस लोगों के पास उतनी नॉलेज नहीं है. बट व्हाट इंस्पायर्ड यू कि चलो फाइनेंस में आगे कुछ करते हैं या उसके बारे में लोगों को एडवाइस देते हैं? So I think post-COVID or during COVID, this topic got very मतलब हर जना इसके बारे में बात करने लगा because that was a difficult time for everyone financially. And that was the time when people started thinking, okay, I should have had bought an insurance long time back, or maybe I should have built an emergency fund a long time back. And उस time पे जब लोगों ने ये realize किया, तो of course whenever there is demand, एकदम से अपने आप supply create हो जाती है. तो इसीलिए Insta पे at that point a lot of finance creators came up and they started making content around that. Unfortunately, that was not the time when we entered the market. I wish we had entered the market at that time, but we were thinking more in terms of, because I did computer science from Ashoka University, so we were thinking more in terms of tech. How can we build an app that can enable people to take better financial decisions? So we worked on that for a while, but eventually we thought कि नहीं, content creation is also actually adding a lot of value in terms of helping people understand what in terms of what they can मतलब learn and then implement in their lives. So then we entered this market as well. Yeah, and we are parallelly working on the other part. I guess content creation वैसे भी आजकल काफी बूम कर रहा है. And if you're making content जो finance related हो या कोई ऐसी चीज पे जिससे लोग बहुत benefits उठा सके, तो वो एक बहुत ही अनोखी चीज है. But as you mentioned कि आप थे computer science के, but then you shifted to finance. तो ये transition कैसे आया? So that is the very long story. I was in computer science and I was doing virtual reality. Achha. So we opened the first virtual reality experience center in Kanpur in GT Road. So the idea was that if you want to get your interiors done, you come to us. We will show you what your interiors will look like once they're done in virtual reality. So you'll wear the VR headset and when you look around, you can see कि आपका fall ceiling कैसा लगेगा या फिर flooring कैसी लगेगी या पूरा setup कैसा लगेगा. And then we used to implement that setup for people as well. Now when COVID struck, even though that business was like 3-4 years old, but like at that point we realized I myself realized the importance of finance, understanding finance to take better business decisions. So at that point I realized ki like even though the business was profitable and everything was going great, but if I knew better finance management, I could have done it much better. So that is when I started reading about personal finance and I got in touch with my partner and we started studying finance. He was in the finance field from 2 years, but yeah, that's how we ventured into this field. And then I did CFA ka level 1 and did some actual courses in the field. And that's so कोई आपने कभी ऐसे कोई केस स्टडी आपके सामने आई हो या फिर कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई ऐसी चीज जो आपने अपनी या तो ब्लॉग में बताई हो या कोई भी चीज जिससे आपको बहुत सीखने को मिला एंड यू थिंक पीपल शुड डेफिनेटली रीड अबाउट इट रिलेटेड टू फाइनेंस? So because everything I know about, I was not in commerce background in school में या फिर college में. So everything I've learned about finance is through blogs, books and courses online जो Udemy, edX वगैरह पे courses होते हैं. So that is how I learned when I ventured into the stock market. So you can't study stocks unless you know how to read a financial statement. So there is this very good course on edX. It's a free course by IIM Ahmedabad के एक professor and it teaches you how to read financial statements. So that is where I learned accounting. Businesses को value कैसे करना है उसके लिए there is this very interesting free course on valuation by Professor Ashwath Damodaran.
he is valuation ka, he's considered valuation ka king पूरे world में भी, and he is a valuation का professor at NYU Stern. So that is मतलब इन्हीं सब sources से सीखा है मैंने. Books on personal finance, books on stock market, investing. हाँ डेफिनेटली आई गेस दैट्स वेरी इंसाइटफुल एंड हमारी ऑडियंस को भी एक आइडिया रहेगा कि कहाँ से वो फाइनेंस इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हैं अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस वाला ऑफ कोर्स दैट्स लाइक द प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म फॉर देम बट यू ऑल्सो सेड कि अभी फाइनेंस के बाद यू ऑल्सो एंटर्ड कि आप स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देने लगे उस प्लेटफॉर्म पे सो वो चीज़ कैसे आई Right. I'll just get that to in a minute. उससे पहले जो बाकी लोग कैसे personal finance सीख सकते हैं उसके लिए there is something that I believe in very strongly, and that happened after I started reading books on personal finance. So it is a very strong recommendation to anyone who's hearing this. Just type on Google top 5, top 10 books on personal finance and read the first 5 books that come up. सबके लिए हो सकता है अलग आए. Mostly overlap होने लगता है once you've read 5, 6, 7 books. Overlap होने लगता है content, but make sure you do that because everyone in this world uses money. They have to use money and save money and invest money, and उनको interact करना ही पड़ेगा. It's not a choice, no matter who you are. So if you have to do that, it's better to learn how to do that well. And the books I'm talking about, they're like 200, 250 pages. Even if you take a year to read 5 books, तो भी कोई problem नहीं है. 1 year later, I promise you, you will be so much better at managing your money. That's going to really, really help you a lot. That is what I felt after reading these books. So that is one recommendation that I have for everyone. Yeah, reading about finance is definitely the need of the hour because people actually like लोग बहुत भागते हैं इस genre से. Like people think कि इसमें until unless I did a course on the same तभी मुझे इस बारे में knowledge होगी, but that's not the case. People should know about it. But coming back to the part of startups and entrepreneurs, so आपने वो field कैसे enter करी? So हम लोग जब इस पे बात कर रहे थे फाइनेंस वाले पेज पे we were also talking about how people can invest in the stock market and we were analyzing, we do that for a living, we analyze stock market की companies and invest in them. So we realized कि when we are anyways analyzing businesses and if you're investing in any company, let's suppose you're analyzing a company that makes these mics and it's a listed stock. Now to analyze this business and understand how well this can perform, I also have to analyze its competitors. And many of those competitors are not listed. So we realized that since we are anyways researching all these businesses, why not share the stories that we find here and which are very interesting and inspiring as well with our audience. So that is how we ventured into startups and other unlisted businesses as well. So right now we don't focus on only companies that are listed and can probably be invested in by anyone, but we also focus on stories that are inspiring and people can relate to how they took certain decisions which help them grow their business, which people can also incorporate in their own businesses. That's great to know. Like you are also expanding and your audience is also expanding क्योंकि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है. अच्छा, since you read so much about finance, तो आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी जो लोगों को एज या तो मिथ लगती है या फिर was that one wrong financial advice जो आपको कभी किसी ने दी हो या आपने कहीं सुनी हो? There are too many, like hundreds, if I may say. But one very small misconception that instantly comes to my mind जब आपने बोला कि जो आपको लोगों ने बोला हो, तो that is like if you invest 100 rupees in the stock market and you make 100 का profit, you should take out that 100 and just play with the profit. So that is a completely wrong idea. The idea of the stock market is to compound your money. Exactly. Now, आपने 100 invest किया था, you made a 100% return and now you have 200, right? If you take out that 100 and you again make 100% का return, you'll still be at 200, which will be total 300. If you let that money be there and you again make a 100% का return, you'll have 400. That is the power of compounding, right? If you make 100% on that, that'll be 800. So only when you let your money grow for a longer period of time do you मतलब get the benefit of compounding. अभी प्रॉब्लम क्या है कि what people think is कि 100 पे 100 का प्रॉफिट हो गया, मैंने अपना 100 प्रिंसिपल निकाल लिया, so now my money is safe. Now whatever I'm doing is with the profit. Even if I lose it, it's not a problem. I came out zero. That is wrong. जो 100 आपका प्रॉफिट था वो आपका ही पैसा है अभी. Exactly. Now your capital is 200. You just lost your profit if you go in the loss. Now your capital is 200. So you should focus on how you can grow, take that 200 to 300 या 350 या 400 कुछ वैसे. You shouldn't think कि ये तो profit है, ये चला भी जाएगा तो कोई बात नहीं. Right, exactly. But following the same, what's that one financial advice जो आप लोगों को देना चाहोगे? See, सबसे major, सबसे important financial advice तो यही है कि read at least 5 books on personal finance as early as possible, because जो भी finance पे किसी भी financial page पे सिखाया जाता है, no matter कौन सा page है, वो आपको पूरा नहीं, बट हाँ, आई थिंक उसका 60-70% एटलीस्ट उसका सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपको 5 से 10 पर्सनल फाइनेंस की बुक्स पढ़ के मिल जाएगा. It's just permutation and combinations of that same content. So if someone says start investing early,
इन्फ्लुएंसर्स विल टेल यू द सेम थिंग बहुत ही अलग अलग तरीकों से, अट्रैक्टिव तरीकों से भी, ताकि आप एक्चुअली इन्फ्लुएंस होके वो करना स्टार्ट कर दो. बट every personal finance book will talk about the same thing, ki start early. So basically that is, matlab, if you do that, you will probably cover like 70-80% of what you need to know. So by the term early, do you have like any specific age group or something कि अब तो कर ही देना चाहिए start? So the latest you should start is I think 19. मतलब उससे लेट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, because once you've done schooling, उसके बाद college में जब आप हो तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ यू, मतलब आप अपना करियर किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो. एंड नो मैटर आप जिस भी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, यू हैव टू डू इट. मतलब लेट्स सपोज यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन, और लेट्स सपोज यू वांट टू डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर, आपको पैसे चाहिए होंगे, राइट? इफ यू वांट टू डू इट वेल, यू माइट वांट टू इन्वेस्ट इन इक्विपमेंट, यू माइट वांट टू इन्वेस्ट इन प्रमोटिंग योरसेल्फ और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो फॉर दैट यू नीड फंड्स. नाउ उस टाइम पे भी आपके पास कुछ पॉकेट मनी होता होगा जो आप स्पेंड करते होगे. इफ यू मैनेज दैट पॉकेट मनी वेल, you will know how to manage your business का profits well. Exactly. So it's like अगर आप जो 100 रुपए अच्छे से मैनेज करता है, वो 100 करोड़ अच्छे से मैनेज कर सकता है. जिसको 100 रुपए मैनेज करना नहीं आता है, उसको अगर हम आज 100 करोड़ दे भी देंगे तो he'll come back to 100 because वो उसको नहीं मैनेज कर पाएंगे. हाँ, so I guess जितना जल्दी हो सकता है, in fact people can start managing even with the 50 rupees, as you said कि आपको जो savings मिल रही है, आप एक बार उसमें अपना financial management check कर सकते हो कि how am I managing the same. Right. And 18-19 के बाद काफी सारे उनके पास earning options खुल जाते हैं, so it will be beneficial कि अगर वो early stages में सीख लें. Yeah, and even if you're not earning, even if pocket money मिल रहा है, consider that pocket money you're earning and just manage that. हाँ. तो it's more about habit building. It's more about building that frugal mentality in the sense कि पैसे स्पेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे स्पेंड करने में, पैसे वेस्ट नहीं कर सकते. तो जैसे एक बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल होता है, इफ यू कोई भी अगर आप कहीं कुछ खरीदने गए हो एंड आपने कुछ ऐसा आपको दिख रहा है जो आपको खरीदने का मन कर रहा है, बट आपने प्लान नहीं किया था, सो दैट इज कंसिडर्ड एज एन इम्पल्स परचेज. सो वन बेसिक रूल दैट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंड इज कि डोंट बाय इट दैट डे, गो बैक होम 24 आवर्स लेटर, अगर स्टिल आपको मन करता है कि नहीं मुझे वो खरीदना है, तो फिर खरीद लेना. तो इट्स बेसिकली टू स्टॉप इम्पल्स परचेज की देखा एकदम से मन किया पैसे खर्च कर दिए. सो ये जो एक छोटा सा हैबिट बिल्ड करने का है कि नहीं अगर मेरे को पैसे खर्च करने का मन कर रहा है, बट फिर भी आई विल स्टॉप माई सेल्फ, आई विल मेंटेन दैट फाइनेंशियल डिसिप्लिन ऑफ नॉट जस्ट स्प्लर्जिंग आउट. तो फिर दैट इज गोना गो अ लॉन्ग वे. दैट विल हैपन इवन व्हेन यू हैव लाइक आई डोंट नो 50 CR 100 CR. हाँ, I guess even with the finance management you need to start with the small, and उसके बाद ही आप एक बड़े पाथ पे जा करके then you will be able to handle a lot of money in your account. हैबिट बिल्ड करनी है. हाँ, so अर्चित, as you said कि हर किसी इंसान को like 5 books तो पढ़नी चाहिए फाइनेंस के ऊपर, बट पीपल ऑल्सो कंसिडर कि उन्हें इतना मतलब दिमाग भेड़ने के बजाय दे कंसिडर कि हम किसी कंसल्टेंट को ले लेते हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको फाइनेंस की नॉलेज हो. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज बेनिफिशियल, पर्सनली पढ़ करके वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड करना या फिर हम किसी कंसल्टेंट को कंसिडर करें? नहीं, कंसल्टेंट को स्पेसिफिक चीज़ों के लिए कंसिडर बिल्कुल करना चाहिए, एंड इनफैक्ट हमेशा ही करना चाहिए, उसके बिना खुद से नहीं करना चाहिए. अगर आप कोई भी आपका फुल टाइम जॉब है तो फिर आप, आई डोंट थिंक कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना इज अ फुल टाइम जॉब. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट यू कैन सेलेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑन योर ओन. आई पर्सनली बिलीव कि म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स को हायर करना इज अ गुड डिसीजन. इवन तो म्यूचुअल फंड एडवाइजर को जब आप हायर करते हो तो आप 1% उनको दे रहे हो, बट स्टिल आई थिंक इट कैन बी अ बेटर डिसीजन अगर वो आपको 1% से ज्यादा का अल्फा जनरेट करवा पा रहे हैं. यहाँ पे थॉट ये है कि लेट्स सपोज आपको कोई घर खरीदना है. अब घर खरीदने के लिए इट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर यू एंड यू माइट गेट अ गुड डिसीजन अगर आप एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट हायर करते हो. नाउ वाइल हायरिंग, वेदर यू आर हायरिंग अ रियल एस्टेट एजेंट या फिर आप स्टॉक मार्केट में किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर या फिर रिसर्च एनालिस्ट को हायर कर रहे हो, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू शुड लुक एट. फर्स्ट इज कि इज दैट पर्सन ट्रस्टवर्दी, डज दैट पर्सन हैव योर गुड इंटरेस्ट एट हार्ट. सेकंड इज ही कॉम्पिटेंट इनफ. तो इवन इफ ही इज गुड एट हार्ट, अगर वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो वो आपको वो अल्फा जनरेट करके नहीं दे पाएंगे जो वो उनका फीस का चार्ज कर रहे हैं. वंस यू फाइंड समवन हु गिव्स यू बोथ, तो फिर यू विल बी बेटर ऑफ कंसल्टिंग अ डिफरेंट पर्सन. बट एट द सेम टाइम, इवन व्हेन यू आर कंसल्टिंग अ रियल एस्टेट एजेंट, यू शुड हैव सम प्रायर नॉलेज टू मेक श्योर कि वो आपको बुद्धू नहीं बना पाए. तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. जैसे लेट्स सपोज यू रन अ बिजनेस, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस आप रन करते हो. अब वेबसाइट बनानी है, यू हैव हायर्ड अ टीम, यू हैव हायर्ड अ पर्सन हु इज डूइंग वेब डेवलपमेंट फॉर यू, यू हैव हायर्ड अ पर्सन हु इज क्रिएटिंग पोस्ट्स एंड रील्स फॉर यू एंड डिजिटल मार्केटिंग का आप पूरा सेटअप रन कर रहे हो. नाउ यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोड ऑन वर्डप्रेस टू
हायर अ पर्सन हुल डू दैट फॉर यू. बट अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो इफ दैट पर्सन इज टेलिंग यू कि नहीं यार इस काम में 3 दिन लगेंगे, तो इज ही लाइंग और इज ही नॉट, मतलब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. So those books will get you the basic understanding. They'll give you a full idea of कि okay, real estate agent के through मेरे को अपने पूरे portfolio का 20% में भी real estate में डालना चाहिए, 5% में भी gold में डालना चाहिए, 30% में भी mutual funds में डालना चाहिए. Even for that there are wealth advisors, but still having some basic knowledge will help you decide whether the person you are going with is competent enough or not. डेफिनेटली आई गेस बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सिर्फ एक ब्लाइंड फोल्ड होकर के जो वो कह रहे हैं उनको फॉलो करने के बजाय यू शुड बी एबल टू क्रॉस क्वेश्चन देम एज वेल, कि अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा करना है, यू शुड आस्क देम कि ऐसा ऐसा क्यों करना है, आई रेड कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. सो आई गेस सामने कंसल्टेंट को भी एक ये रहता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो नॉलेजेबल है एंड नाउ आई कैन नॉट मेक अ फूल आउट ऑफ हिम एट एनी पॉइंट. अच्छा, अभी लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स अब इन्फ्लुएंसर्स भी बन चुके हैं एंड दो पीपल नॉट टॉक अबाउट फाइनेंस अ लॉट, बट स्टिल क्योंकि आम जनता को उतनी नॉलेज नहीं है तो अगर 10 लोग भी बात कर रहे हैं तो उनको भरोसा हो जाएगा 10 के 10 पे. सो इस जॉनर में कंटेंट क्रिएशन कितना टफ है, लाइक क्योंकि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर कोई ज़रूरी नहीं कि ऑथेंटिसिटी पे बात कर रहा हो. नहीं, दिस इज ऑल्सो वाई यू शुड हैव सम प्रायर नॉलेज पहले से, बिकॉज मतलब बहुत सारे पेजेस में विद अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स मैंने इतना ज़्यादा गलत कंटेंट देखा है कि मतलब देयर इज नो सोल्यूशन. लाइक पीपल एक्चुअली बिलीव दैट मतलब कंटेंट, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग गिमिक की तरह यूज कर रहे हैं उसे. हाँ, तो दैट इज व्हाई यू शुड हैव योर ओन शील्ड्स अप. मतलब यू शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज कि आपको पता हो कि यार ये तो एकदम ही गलत है. एंड यू कैन क्रॉस चेक, मतलब जो भी आप चीज सुनते हो बिफोर एक्चुअली पुटिंग योर मनी इन इट और बिफोर एक्चुअली टेकिंग अ डिसीजन ऑन इट, यू शुड रीड अबाउट इट. इट्स योर मनी, मतलब आपने, दैट इज द प्रॉब्लम. सो 100 रुपीज कमाने में अगर आप 10 घंटे स्पेंड कर रहे हो तो उसको बेटर मैनेज करने में 10 मिनट 20 मिनट स्पेंड करना, हाउ इज दैट अ बैड डिसीजन? राइट, बट ये तो हो गया अच्छा फ्रॉम द ऑडियंस पर्सपेक्टिव. अगर आप क्योंकि कंटेंट क्रिएट करते हो, आपको कितनी डिफिकल्टी आती है लोगों को ट्रस्ट बिल्ड कराने में या फिर अपने कंटेंट को एक ऑथेंटिकेटेड वे में प्रमोट करने में? ट्रस्ट इजीली बिल्ड हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब कुछ भी बोल रहे हैं लोग एंड फिर भी मतलब फॉलोइंग आ रही है. तो इवेंचुअली आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सो फॉर एग्जांपल थिंक स्कूल ने बहुत टाइम तक जब बहुत अच्छा कंटेंट बनाया तब जाके अभी लोग, मतलब उनके आप अगर कमेंट सेक्शन में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, इनफैक्ट मतलब पीपल डोंट इवन क्रॉस चेक देयर कंटेंट बिफोर शोइंग इट अपने कॉलेज के क्लासरूम लेक्चर्स में. सो आई थिंक ट्रस्ट बिल्ड्स विद टाइम. बट अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम जो हो रही है कि इनिशियल डेज में, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट हो रहे होते हैं तो बहुत जल्दी ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है. ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद वो एक बार ब्रेक होता है तो फिर से बिल्ड नहीं होगा. सो दैट इज समथिंग दैट इन्फ्लुएंसर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. बट अभी ये तो एक प्रॉब्लम है, ट्रस्ट बिल्ड अपने आप ही हो जा रहा है. मतलब हाँ, ये आई गेस इतना एडवांटेज है उतनी डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर आपसे ट्रस्ट हो रहा है तो बाकियों के भी बहुत इजीली हो सकता है. हाँ, मतलब मैं तो यही देख रहा हूँ ना, यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो लोग झूठ बोल रहे हैं वो भी ट्रस्ट बिल्ड कर ले रहे हैं. तो मतलब डिफरेंशिएशन बहुत डिफिकल्ट है. कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है. एंड इसका एक सोल्यूशन बस नॉलेज ही हो सकता है, आई गेस. नॉलेज ही हो सकता है. एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे लोग जो गलत बोल रहे हैं उनको पता भी नहीं है कि वो गलत बोल रहे हैं. मतलब उनको लगता है कि वो सच है, मतलब वो सही है. हाँ, तो दे आल्सो लैक नॉलेज, राइट? क्योंकि उन्होंने जो सुनी थी वो भी आई गेस इस जॉनर पे तो काफी लोग जो सुनी सुनाई बातें वही करते हैं. मुझसे किसी ने कहा, थर्ड पर्सन ने, कि ऐसा ऐसा करना चाहिए. नाउ आई एम टेकिंग इट फॉरवर्ड एंड टेलिंग इट टू पीपल इन अ लार्जर प्लेटफॉर्म कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, बट आई हैवंट रेड अबाउट इट. Exactly. ऐसे ही वर्ड ऑफ माउथ से और बहुत ज्यादा वो स्प्रेड हो जाता है. कितने लोग उनको शेयर कर देते हैं. इनफैक्ट क्रिप्टो में तो ये हमने सबसे ज्यादा देखा था. क्रिप्टो में बहुत सारे लोग आके बोल रहे थे कि नहीं, बिटकॉइन इज द नेक्स्ट बिग थिंग. नाउ द थिंग इज कि जो लोग बोल रहे थे उसमें से बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोल रहे थे. उनको एक्चुअली लगता था कि बिटकॉइन विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग एंड इट इज अ गुड डिसीजन टू इन्वेस्ट इन इट. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली आल्सो इन्वेस्टेड इन इट. बट एज एन इन्फ्लुएंसर, वंस यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ फॉलोइंग, यू हैव अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होके, इवन दो आपने बिटकॉइन में अपने पूरे पोर्टफोलियो का 0.5% डाला है एंड वो अगर डेड भी हो जाए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा. समवन माइट गो अहेड एंड पुट इन 50% ऑफ देयर पोर्टफोलियो एंड वो अगर लॉस हो गया तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिकवर. तो बहुत बार आपको ये भी रियलाइज करना पड़ता है कि इवन दो आप सच बोल रहे हो, आपको लगता है आप सच बोल रहे हो, यू हैव टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ द कंटेंट दैट यू आर शेयरिंग. सो यहाँ पे ट्रस्ट वाले में ये भी प्रॉब्लम है कि मतलब लोग सच भी बोल रहे हैं फिर भी उनको ट्रस्ट नहीं कर सकते. हाँ, अरे अब यू सेड जैसे 0.5% लोग लगाते हैं, कोई कोई तो 0.5 भी नहीं लगाता. वो बस इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे बिकॉज दे थिंक कि दे आर अ इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म एंड उनका काम है इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना. बट आई गेस ऐसे जॉनर्स में, चाहे हम फाइनेंस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें जब तक खुद से पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए,
तब तक हमें उसके बारे में इन्फो नहीं डिलीवर करनी चाहिए. राइट. एंड सेम गोज विद स्टॉक मार्केट या फिर किसी भी उस तरीके का फाइनेंस जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है, वहां पे स्पेसिफिकली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. स्टॉक मार्केट में आई सी सो मेनी पेजेस दैट आर शेयरिंग एडवाइस which they think is correct, which a lot of people think is correct, but it is very arguable whether it is correct or not. And also because that field is so subjective that the same thing might be true for someone, it is not true for someone else. Yeah, exactly. And आप जब एक large audience से बात कर रहे होते हैं, तो you can't talk about such a general subject, because if someone who it is not relevant for adopts that, it can be very difficult, very painful for them. Yeah, either you like you mentioned conditions and terms and conditions everything कि हाँ अगर ऐसा ऐसा है तो ही ये चीज आगे आप कर सकते हो या इस पे पैसा इन्वेस्ट करना, क्योंकि एक जनरलाइज लेकर के आप सब में नहीं कर सकते सेम इन्फॉर्मेशन. I think it's also it's better to just refrain from that topic, because जब उसमें terms and conditions की भी बात आ जाती है, so there are so many कि मतलब it's not even possible. हाँ, because it's not possible कि आप mention कर दो हर एक चीज and हर एक individual को आप consider करके चलो. हाँ. And being a creator, एक और बहुत बड़ा problem ये है कि you have to be interesting in the first 5 seconds. Very true. And you can't be boring at all at any given point. If you are, your channel won't grow. So because it is also a business for a lot of people, they can't talk about the boring stuff. तो अगर मैं categories बना के बताने लगूं लोगों को कि इस condition में ऐसा है, इस condition में ऐसा है, people might start getting bored and they won't watch the content at all. So that is a very big conflict that a lot of influencers face, which is why they मतलब share half information, which can be very harmful. तो इसीलिए because sharing full information is not possible or very difficult, या फिर उसका बहुत niche market है, and Insta पे तो नहीं हो सकता, YouTube पे probably you can do it. तो you should just refrain from talking about that topic, because eventually it is going to come back. कभी ना कभी आपने trust build कर लिया, following build कर ली, सब कुछ सही है, unfollow button भी उतना ही fast दबता है. तो अगर आपने गड़बड़ किया है तो you are going to lose it as soon as you gained it. If you are able to deliver fully informative topic or full information on something within 30 seconds or 1 minute, then literally you are a magician in the field of content creation. सबसे difficult part वही था कि कैसे इतने कम टाइम में स्टोरी सुनानी है. So thank you so much Archit, it was wonderful talking to you and I hope मैं भी अपना finance अच्छे से manage कर पाऊँ following your blog. Thank you so much. Thank you.